السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں مجنون کی ایپیسوڈ 54۔ تو بہت ہی مزے کی آج کی یہ والی بھی ایپیسوڈ، تو جلدی سے لے کر چلتی ہوں بنا ٹائم ضائع کیے، کیونکہ یہ والا ہفتہ بہت ہی زیادہ آپ کو بے قرار رکھے گا۔ ہر ایپیسوڈ ایسی جگہ پہ اینڈ ہوگی کہ آپ کہیں گے بس جلدی سے اگلی ایپیسوڈ آ جائے، تو میں بھی آپ کو جلدی سے لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ ہے 54، ناول مجنون باعث مروا مرزا۔ لیٹس سٹارٹ۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ رونا بند کرو، کیا چھوٹے بچے ہو تم؟ پر سکون ہو جاؤ، مجھے پہلے آرام سے ساری بات بتاؤ کہ تم سجل کے لیے کب سے اتنے سنجیدہ ہوئے۔ روئے بنا بتاؤ ورنہ میرا دماغ پہلے ہی خراب ہے، کسی کا سر پھاڑاؤں گا۔ آراز کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی، جس کے بعد آریز نے اسے ہر چیز تفصیلاً بتائی، یہ بھی کہ اس کے اور سجل کے بیچ کی ٹینشن کیسے اور کب سلجھی، اور شہباز اس سارے معاملے میں کہاں کہاں شامل رہا۔ خود سجل کے حوالے سے اتنا سب جان کر آلوش کا بھی مانو سر سا چکرا گیا۔ ان کے پیچھے اتنا سب ہوا تھا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ تم اسے معاف کیسے کر سکتے ہو؟ اس کی بے وقوفی کی وجہ سے تمہاری جان جا سکتی تھی، اسے اپنے کیے پر شرمندگی ہونی چاہیے تھی، الٹا وہی تمہیں رلا کر چلی گئی۔ میں سجل کو اپنی بہن مانتا تھا، لیکن اس نے بہت مایوس کیا مجھے۔ میں تمہیں تکلیف دینے والے اور رلانے والے کسی انسان کو معاف نہیں کرنے والا۔ یہاں آؤ، اب کبھی اس کے لیے مت رونا۔ آراز نے اپنا ہر ممکنہ غصہ دبا لیا، لیکن وہ جتنا بھی خود کو پرسکون کرتا، اس کی آنکھیں بتا دیتی تھیں کہ وہ کس کرب میں مبتلا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شرمندگی کے ہاتھوں ہی رلا بیٹھی ہو۔ ان کو آراز کوئی لڑکی نہیں چاہ سکتی کہ اس کی وجہ سے اس کی محبت کو کچھ ہو۔ میں جانتی ہوں سجل کو وہ ان کی تکلیف دور کرنے کے چکر میں اور درد پہنچا گئی ہوگی۔ سجل کو غلط مت سمجھیں آپ دونوں، میں بات کرتی ہوں گھر جا کر اس سے، یقیناً سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آلوش نے یہ تکلیف دہ ماحول دیکھتے ہوئے خود ہی سجل خان کے لیے مدافعت برا انداز اختیار کیا، تو آراز نے اسی غصے سے آلوش کو دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے ٹھیک ہونا باقی رہ گیا ہے؟ اسے رلا کر گئی ہے، میں اب سجل سے خود دو ٹوک بات کروں گا، پہلے اس شہباز سے حساب لے لوں، اور تم خبردار مجھے تم ماتم میں نظر آئے۔ آراز نے آریز کو سختی سے منع کیا اور خود اٹھا ہی جب وہ آراز کی راہ میں حائل ہوئی۔ آریز بھی زخمی نظروں سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کے سوال پر اسے ہشمگی نگاہوں سے گھورا۔ میرے بھائی کو گولی مارنے والے کو ٹھیک اسی جگہ گولی مارنے۔ ہٹو پیچھے۔ وہ اس کو پکڑ کر ایک طرف کرتا کمرے سے نکلا، تو آلوش نے پلٹ کر آریز کو دیکھا۔ آریز بھائی، میں سجل سے بات کروں گی، اسے جو بھی چیز اس سنگ دلی پر مجبور کر رہی ہے وہ جاننے کی کوشش کروں گی۔ پلیز آپ پریشان نہ ہو، اس وقت آپ کو ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ آریز نے بے دلی سے ہی صحیح پر سر ہلایا، تو وہ اداسی سے دیکھتے باہر نکلی ہی جب آراز سامنے سے آتے زرگام اور مہرماں کو دیکھے رک گیا تھا۔ میران فی الحال ترزہ حویلی نکلا تھا، کیونکہ یعقوب ترزہ تک خبر پہنچ گئی تھی اور وہ ہاسپٹل آنے کی ضد کر رہے تھے۔ میران انہی کو لینے گیا تھا۔ تم نے اور میران لالا نے اب تک آریز کے مجرم کو سزا کیوں نہیں دی؟ آلوش کی آنکھیں بھائی کو دیکھے بے قرار تھی۔ وہ جا کر گلے لگنا چاہتی تھی پر رک گئی، کیونکہ آراز اور زرگام آمنے سامنے تن چکے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر بھاگ گیا تھا، اس سے پہلے میں معاملہ جانتا اس کے باپ نے اسے نہ جانے کس پاتال میں جھونک دیا ہے، لیکن 12 سے 14 گھنٹوں کے اندر اندر میں شہباز رخانال کو ڈھونڈ لوں گا۔ زرگام کی وضاحت پر آراز کے ماتھے پر بل پڑے۔ تمہیں اس بارے دیر سے کیوں پتہ چلا، اور تمہارے سامنے وہ بھاگا کیسے؟ زرگام، اگر اس کے باپ نے اسے کسی پاتال میں جھونکا بھی ہے تو تم تو یہاں کا چپا چپا جانتے ہو، اسلام آباد کا بھی اب تک ڈھونڈ کیوں نہ سکے؟ اسے اس کے باپ کو گردن سے کیوں نہیں دبوچا تم نے؟ آراز کے یہ سب سوال جائز تھے۔ مہرماں اور آلوش خوفزدہ سی نظر آئیں، کہیں وہ دونوں لڑ نہ پڑیں۔ دراصل اجمل کی بیٹی نے مجھے کڈنیپ کر لیا تھا، لاہور سے یہاں واپس آتے ہوئے اسلام آباد لے گئی تھی۔ میری بازو زخمی تھی، سر پر بھی چوٹ تھی۔ جبکہ آریز کو گولی مارے شہباز بھی سجل کو لے کر اسلام آباد نور خانال پہنچ گیا تھا۔ اسلام آباد نور خانال حویلی پہنچ گیا تھا۔ مجھے سجل کو وہاں سے لے کر نکلنا سب سے اہم لگا، کیونکہ وہ لڑکی اپنی جان لینے والی تھی۔ رہی بات شہباز کے بھاگنے کی، تو میری لا علمی کا فائدہ اٹھایا اس نے۔ یہ سب سنے آلوش بے قراری سے زرگام تک پہنچی۔ اس کی یہ بے اختیار ہوتی فکر نے لمحہ بھر ماحول بدلا۔ بھائی زخمی ہوئے، اب کیا ہوا؟
वो आलूश का चेहरा हाथों में भरे उसका सर चूमते मुस्कुराया तो जहाँ महरमा मुस्कुराई वहीं आरास का गुस्सा और तकलीफ भी जैसे अपनी शिद्दत छोड़कर हफीफ से ज़रगाम से जुड़े हसद में बदलती नजर आई। बस छोटा सा जख्म था, अब तो बहुत बेहतर है। तुम परेशान मत हो, तुम्हें देखकर वैसे भी भाई अच्छे हो गए हैं। महरमा मेरे साथ थी, इसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। आलूश ने भीगती आंखों से भाई को फिर महरमा को देखा, जैसे आंखों ही आंखों उसकी बेहद मशकूर हो रही हो। मैं गले लग जाऊं, दर्द तो नहीं होगा ना आपको? आलूश ने हसरत से पूछा तो ज़रगाम ने उसे खुद अपने सीने लगाया। जबकि आरास की जलन भांपती महरमा ज़रगाम के पास से चलती आरास तक पहुंची। जलो मत, वो भाई बहन है। आरास ने महरमा की नसीहत पर इसे भी सर्द निगाह से देखा, जिस पर वो ज़रगाम को इशारा करती मुस्कुराती हुई रूम की तरफ चली गई। खुद आलूश भी भाई से अलग होती उनका हाथ अपने हाथों में थम गई और एक डरी सी निगाह आरास पर डाली। वो इस मेल मिलाप को कुछ मिनट से बड़े तखम्मुल के साथ बर्दाश्त कर रहा था। आरास की नज़रों की तमाज़त के सबब ज़रगाम ने अपना हाथ आलूश के हाथ से छुड़वाया। आरास, ताज़ियत कबूल करो वीरे। आरास ने सिर हिलाते ज़रगाम को देखा, इसके चेहरे पर कोई तासुर न था, मगर जब आलूश ने दूसरी बार ज़रगाम का हाथ थामा तो इसके जबड़े की हड्डी नुमायां हो गई। तुम इसका हाथ छोड़ो और मुझे बताओ क्या करना है अब। शहबाज को मैं मजीद एक लम्हा भी रियायत नहीं दे सकता। तुम लोगों की तरह सुकून से बैठा नहीं जा रहा, मेरे अंदर आग लगी हुई है। ज़रगाम ने आलूश की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो कि अब हाथ छोड़ दो, पर वो मजीद ज़रगाम का हाथ जोर से पकड़ गई। आप पहले मेरे भाई की तबीयत तो पूछ लें, आते साथ मरने मारने पर उतर आए हैं। ये मेरे साथ साथ आपके भी भाई हैं। अरे इसके साथ जिसने बुरा किया वो तो भुगतेगा ही सजा, पर आप मेरे भाई का अहवाल ना पूछकर मुझे तकलीफ दे रहे हैं। लूशिया ने भी कसम खाई थी वो आरास को पागल करेगी। ज़रगाम तो उनके बीच मासूम सा सैंडविच लग रहा था। लूशिया उसका हाथ छोड़ नहीं रही थी और आरास की नजरें इन हाथों पर यूं थीं जैसे बस चले तो पकड़ कर अलग कर दे। क्या पूछूं तबीयत? अभी इसने फारसी नहीं बोली थी तुमसे कि ठीक हूँ। ना मैंने अपने कानों में कुछ ठूसा है कि मुझे आवाज ना आई हो। ठीक है ये। आरास का रूड लहजा और जलन भांपे वो दोनों बहन भाई धीमा सा मुस्कुराए। आरास, आलूश ने भवें उचकाकर आरास को देखा। अब क्या तकलीफ है? ठीक हूँ मैं। वो हत्थे से उखड़ा। ठीक है तो क्या इनसे दो मोहब्बत के बोल भी नहीं बोल सकते? हर बात में लड़ाई जरूरी होती है क्या? वो आरास की सरजनिश करती बोली। मोहब्बत के बोल? आरास ने तंजिया अंदाज में दोहराया। जी, वो भी फौरी बोली। मेरे हिस्से की मोहब्बत के बोल भी तुमने अपने भाई पर खर्च कर दिए हैं, मेरे कहने की जरूरत नहीं रही। वो साफ साफ मुकाबला बाजी पर उतरा था। तो क्या हुआ, ये भाई है मेरे। वो उसका हाथ दूसरे हाथ को भी रखकर दबाए बोली। हाँ, नजर आ रहा है भाईचारा, मेरी भी बीवी हो तुम। ज़रगाम ने होंठ भींच कर अपनी मुस्कुराहट दबाई, जबकि महरमा ने दरवाजे के पास खड़े खड़े पेशानी पर हाथ मारा। या अल्लाह, ये फिर शुरू हो गए। लूशे कुछ करो यार, वरना यही फाइट शुरू हो जाएगी इनकी। महरमा दरवाजे के पास खड़ी लूशे को इशारे कर रही थी। बीवी हूं तो क्या भाई को भूल जाऊं? वो भी लड़ने को तैयार हुई। मैंने ऐसा कब कहा? आरास एक कदम आगे बढ़ा। तो ये हसद कैसा है? वो भी फौरी इस्तफसार करके। मेरी बर्दाश्त की भी कोई हद है? पिछले 10 मिनट से तुमने मेरा हाथ एक बार भी नहीं पकड़ा, अपने भाई का 2 बार पकड़ लिया। आलूश ने हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत के संग इस जल कुकड़े को देखकर आंखों ही आंखों उसका सदका उतार लिया, और ऐसा ही भाईजान ने भी किया। सहे नसीब। ज़रगाम ने फौरन खंगार कर हाथ आहिस्तगी से आलूश के हाथ से आज़ाद किए पीछे कर लिया। मैं खुद छोड़ देता हूँ, मेरी वजह से आलमी जंग ना शुरू हो जाए। ज़रगाम ने खसियाना सा मुस्कुराते सैंडविच बनने से मजीद इनकार किया। भाई आप भी? आलूश ने हबकी से उसे देखा। मुझे अपनी जान बहुत अजीज है और तुम्हारे शौहर की शक्ल देखकर लग रहा है अगला जख्म मुझे यही देने वाला है। महरमा समेत आलूश भी मुस्कुराई, जबकि आरास ने घूर कर ज़रगाम को देखा। मैं जख्म देने वाला लगता हूँ क्या तुम्हें? हाँ, मैं कोई पागल हूँ जो खामखा जानवर बनकर पीटने लगूंगा? बस मेरी बीवी से ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं। मैंने थोड़ी सी दी है लुशियस, सारी नहीं, समझे? इस बार आरास खुद ही काट खाते तेवरों से ज़रगाम के मद्दे मुकाबल आया कि लूशे को उनके बीच हायल होना पड़ा। मैंने कबली सारी वीरे, हाय पर क्यों हो रहा है? पर सुकून हो जा, तेरी ही है। ज़रगाम ने उसे ठंडा करने की सही की। भाई क्यों लाड कर रहे हैं आप इनसे? कोई ज़रूरत नहीं है अपनी ही बहन पर हक जताने के लिए इनकी इजाज़त लेने की।
میں پوری آپ کی بھی ہوں، بہن ہوں، اور بہن بہت قریبی ہوتی ہے۔ ان کی جلن تو میں نکالتی ہوں۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو آراز؟ کیا بس ہم آپ کا غصہ سہنے آئے ہیں دنیا میں؟ کیا ایسا کوئی دن نہیں آئے گا کہ آپ آرام سے بات کریں گے؟ آراز نے گہرا سانس لیتے جیسے اپنا غصہ ضبط کیا۔ یہ بہن بھائی اب اس کا پارا ہائی کر رہے تھے۔ آرام سے بات کرنے کے قابل چھوڑا کب ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا مڑا تو تیسری بھی دروازے کے پاس ہی کھڑے مزے لے رہی تھی، اور اب مزید آراز کو تنگ کیا جاتا تو یہ تینوں ہی کچھ سن لیتے۔ چلو لوشے بس کرو، زیادہ تنگ نہیں کرتے اسے۔ مانا ہی غصے میں کیوٹ لگتا ہے، پر اس کی کیوٹنس دیکھنے کے چکر میں ہم اس کو سلگاتے رہیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس بار زرگام نے ہی صلح جوئی سے معاملہ رفع دفع کیا تو آلوش نے مسکرا کر پہلے بھائی کو دیکھا، پھر وہ آراز کا ہاتھ آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ میں پکڑ گئی۔ بالکل بھائی، میں ان کو زیادہ ہینڈسم دیکھنے کے لیے غصہ دلا رہی تھی۔ دیکھیں ذرا ان کے چہرے کا گلو۔ او میرے خدا، کانوں کو دیکھنا مت بھولیے گا، کیسے چیری جیم کی طرح لال ہو رہے ہیں۔ وہ مسکراتی چلبلی نگاہوں سے آراز کو دیکھتے اس کا غصہ بدل کر عجیب سے غرور میں بدل گئی، اور وہ تینوں ایک ساتھ مسکرائے کہ اس آدمی پر غرور بھی سجتا تھا۔ اب بس کرو تم، میں نے کسی دن غصے میں تھپڑ لگا دیا نا تو پھر ڈھونڈتی رہنا میرا ہینڈسم ہونا۔ وہ آگے سے اب بھی کوئلے ہی چبا رہا تھا۔ تو اسے تھپڑ لگا، میں تیری تشریف سیکھ دوں گا اور نشان بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بڑا آیا تھپڑ مارنے والا۔ یہ سوچنے سے پہلے ذرا میرے ہاتھ کا سائز چیک کر لے ویرے، دیکھ۔ اس نوک جھوک کی سب سے خوبصورت بات تھی کہ ان چاروں کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ دیکھا میرے بھائی کا ہاتھ؟ پڑا نا تو دن میں ستارے نظر آئیں گے۔ اچھا نا، اب بس کریں جلنا، بہت سے امور نپٹانے ہیں۔ میں اور مہرما اپیا ذرا سجل کی خبر لیتے ہیں، آپ بھائی اپنے بھائی کا مجرم ڈھونڈیں۔ وہ فوری یہ معاملہ سمیٹ گئی تو زرگام اور مہرما کے کان کھڑے ہوئے۔ سجل چلی گئی کیا؟ مجھے تو لگا تھا آج وہی کرے گی آریز کی تیمارداری اور شاید رات میں رک بھی جائے۔ زرگام نے تعجب سے استفسار کیا، جس پر آلوش اور آراز نے آریز کا رونا سوچ کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ بتاتا ہوں معاملہ، تم جاؤ مہرما کے ساتھ، اس کم عقل کو سمجھاؤ جا کر۔ مہرما کو بتا دینا، میں زرگام کو ڈیٹیلز دیتا ہوں۔ وہ فوری یس باس کرتی ہوئی مہرما اپیا کی طرف بڑھی ہی جب آراز نے زرگام کی بازو آہستگی سے سہلائی۔ مہرما نے آریز والا معاملہ جاننے سے پہلے فوری اپنے پاس آتی آلوش کو پیچھے دیکھنے کا کنکھیوں سے اشارہ کیا تو وہ مڑی۔ مجھے لگتا ہے یہ فائٹ سے پہلے ہی ہمیں گلے لگوا دے گی۔ آراز کا سرگوشی میں کہا جملہ زرگام نے تو سنا، پر دونوں کو امید نہ تھی وہ بھی سن لے گی۔ بظاہر تو وہ چلی گئی تھی، پر جب آراز یہ کہہ کر پلٹا تو سامنے آلوش کھڑی، کبھی آراز کو دیکھتی کبھی زرگام کو، پھر مسکرائی۔ مہرما کے لیے بھی آراز کا یہ اعتراف خوبصورت تھا۔ اگر میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی تو آپ دونوں سے گفٹ میں بہت اسپیشل کچھ مانگوں گی، تو ذرا سوچ سمجھ کر آپ دونوں ہمت ہاریے گا۔ آپ کا تو وہ گلے لگنا ہوگا، پر مجھے بہت کچھ مل جائے گا۔ لیکن میرے پیار میں ایسا نہیں کرنا، مجھے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا اب دونوں کی محبت ہونے کا، ورنہ شاید اب دونوں مجھے کھو بیٹھے۔ وہ جتنی ان کی خوشی بنی، یہ آخری جملہ کہہ کر وہ اپنے بھائی اور شوہر دونوں کا دل ساکن بھی کر گئی۔ بس فضول ہی ہانکنا، تم جاؤ جہاں جا رہی ہو۔ لوشی نے منہ بسور کے آراز کو دیکھا اور اس کے کندھے پر مکہ برسا کر گئی، پر دونوں کو جاتے جاتے ویٹ اینڈ واچ کا سائن ضرور دکھا کر گئی۔ مہرما اور لوشے وہاں سے گئیں تو آراز اور زرگام ایک بار پھر مد مقابل آئے۔ جب میں پہنچا تو وہ رو رہا تھا کہ سجل اس کی محبت نہیں سمجھی، وہ چلی گئی، آخری ملاقات کا کہہ کر گئی ہے۔ آریز بہت زیادہ ہرٹ ہے، ہمیں شہباز کو پکڑنے کے معاملے کے ساتھ یہ معاملہ بھی حل کرنا ہے۔ محبت کے معاملے میں تو ہم چاروں بھائیوں میں سے کسی میں صبر نہیں ہے۔ آریز کا معاملہ زیادہ سنگین لگ رہا ہے۔ زرگام نے فکر مندی سے سر ہلایا۔ وہ بہت زیادہ ہرٹ تھی، جو غلطی اس نے کی اس پر شرمندہ ہے۔ وہ اپنی جان لینے والی تھی کہ اس کی وجہ سے آریز کے ساتھ یہ ہوا۔ مہرما اور لوشے دیکھ لیں گے یہ معاملہ، نا گرلز پاور۔ ہمیں شہباز کا معاملہ دیکھنا چاہیے۔ میران لالا اور بابا سائیں آ رہے ہیں، ان کے پہنچتے ہی ہم نکلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ آراز اس کے سوالیہ انداز پر سر ہلا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے تمہارے لیے فکر ہے۔ آراز کا لہجہ اس وقت ہر حسد اور غصے سے پاک تھا۔ مجھے تمہاری فکر مجھے دی معافی سے زیادہ پیاری ہے ویرے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہارا اور آلوش کا یہ خوبصورت وقت خراب نہ ہو،
लेकिन होनी को कोई कैसे टाल सकता है। अल्लाह तमाम मरहूमीन की बख्शिश फरमाए। रही बात तुम्हारे दिल की, इसे आरेज़ के दर्द की खबर हुई है तो ये साबित करता है तुम इतने लापरवाह और बेहिस नहीं जितने नजर आते हो। ये वो आरास है जो तुरज़ाए हवेली में मेरे आने से पहले था। अगर तुम्हारा वो वर्जन लौट रहा है तो मैं खुश फहमी पाल रहा हूँ कि आखिर 17 साल बाद ही सही तुमने इस तीसरे भाई का वजूद कबूल कर लिया है। आरास ने मुस्कुराकर एतराफ में सरहम किया, लेकिन वो मुस्कुराहट उसकी ग्रे आंखों की खदूद तक थी, बाहर फैलने से बाज रही। हम कबूल तो उसी वक्त कर लेते हैं, बस मानने और एतराफ़ करने में एक उम्र लगा देते हैं। मैं एक अयाश और मगरूर बच्चा था, वही बना रह जाता। लेकिन तुम जब हमारी ज़िंदगी में आए, मेरी ज़िंदगी बोर नहीं रही थी फिर। मेरा दिलो दिमाग जिससे जिसे जंग लग रहा था मुतहर्रिक हुआ। मुझे मोहब्बत भी करनी आई और नफ़रत भी। और इस बीच मैं और कई इंसानी जज्बात से वाकिफ़ होता गया। ये लड़ाई मैंने अब तक जारी रखी है क्योंकि मुझे ऐसी ज़िंदगी रास आ गई है। कोई अपनी जीत किसी के नाम यूं ही नहीं करता ज़रक़ाम। हालांकि मेरान लाला उसके ज़्यादा मुस्तहिक थे क्योंकि उन्होंने मेरा माँ बाप बनकर ख्याल रखा। लेकिन मैं कुछ अलग बच्चा था। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो मेरा बिल्कुल ख्याल ना करता, और वो तुम बने। ज़रग़ाम ने उसकी तरफ हंस कर देखा। तभी कुत्ते की तरह लड़ने को दौड़ते थे तुम, हाँ, और मैं समझ रहा था पता नहीं कितना बड़ा मुजरिम हूँ तुम्हारा। ज़रग़ाम की हंसी और सुख के सांस पर आरास ने उसकी शर्ट का गिरबान मुट्ठी में दबोचा तो दोनों की आंखों के हदूद तक शरारत नाची। मुजरिम तो हो तुम, और इसकी सजा तुम्हें धो कर दूंगा बेटा। हमारी फाइट तो क़यामत भी आ जाए तब भी नहीं टलेगी। वेट एंड वॉच ब्रो। वो इसे चैलेंज करता शर्ंगेज मुस्कुराया। अच्छा, उस्ताद से उस्तादियाँ वीरे, इम्प्रेसिव। ज़रग़ाम ने उसका वही हाथ दबोच कर आरास को एक ही सेकंड में वही बाजू कमर से जोड़ते काबू किया तो आरास जैसा मंझा रेसलर इस वक्त हिलने से कासिर हुआ। दोनों की आंखें अभी भी फितना है इस चैलेंज से भरी थी। लगता नहीं आलमी चैंपियनशिप जीत के आया है तू। शर्म खा कुछ। हिलने लायक भी नहीं छोड़ा मैंने तुझे वीरे। अब आपके इस थोबड़े की ये बेबसी बहुत प्यारी लग रही है। ज़रग़ाम की ये शौक मस्ती और फ़ख्र काबिले तारीफ था क्योंकि आरास उसके सामने जानबूझकर अपनी ताकत छोड़ चुका था। ज़्यादा मत उड़ो, अगर पूरी ताकत लगा दी तो तुम्हारा ये ज़ख्मी बाजू जवाब दे जाएगा, और फिर आलूश मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। आरास के इस गरूर पर चंद लम्हों को खामोशी छा गई, फिर ज़रग़ाम कहकहा लगाकर हंस पड़ा। बचने के बहाने तो कोई तुझसे सीखे आलमी चैंपियन। आरास ने भी स्माइल की। बहाना नहीं, रियायत दी है। आरास ने सुकून से कहा। अच्छा। ज़रग़ाम मुतासर कुन मुस्कुराया। हाँ, और याद रखना, रियायत हमेशा एक बार मिलती है। दोनों की नजरें फिर से एक दूसरे से उलझ गईं। वही पुराना मुकाबला, वही बरसों की तकरार, वही एक दूसरे को नीचा दिखाने की जिद। ओदी, चलो मान लिया। ज़रग़ाम ने आखिरकार इसका बाजू छोड़ दिया। सियाने हो गए हो तुम। आरास उसकी अक्लमंदी पर मुस्कुराया। नहीं बेटा, 1 साल बड़ा भाई हूँ, इसकी गैरत खाई है, लेकिन अगली बार ना मेरा अगली बार ना मेरा बाजू जख्मी होगा, ना तुम्हें रियायत देने का मौका मिलेगा। तुम खुद ही बचते फिरोगे बेटा। आरास ने आज़ाद होते ही अपनी आस्तीन सीधी की, फिर हल्का सा गर्दन दाएं बाएं घुमाई। मैं भी यही चाहता हूँ, रिंग में तमाशाइयों के शोर में पूरे 5 राउंड हों। वो एक कदम आगे बढ़ा और उंगली से ज़रग़ाम की तरफ इशारा किया। और आखिर में जब तुम कैनवस पर लेटे सांस गिन रहे होगे तब याद आएगा कि आरास इदरीस तोरज़े ललकारने की कीमत क्या होती है। आरास इदरीस तोरज़े को ललकारने की कीमत क्या होती है। आरास ने इसे गर्दन अकड़ा कर चैलेंज किया। ख्वाब देखते रहो वीरे। ज़रग़ाम ने बेसाहता हंसते हुए जवाब दिया। ज़रग़ाम, आरास इसे काट खाते घूरा। अभी तो जख्मी होकर भी तुम्हें 1 सेकंड में काबू कर लिया है। पूरी तरह फिट हो गया तो तुम्हारी ये चैंपियनशिप भी मुझसे पनाह मांगेगी। ज़रग़ाम ने अपना कॉलर फख्र से ऊंचा किया तो आरास ने मुस्कुराकर उससे देखा। मुझे अच्छा लगा, इतने सख्त हालात में भी तुम मजबूत और साबित कदम हो। काश मैं तुम्हें गले लगा सकता, लेकिन असूल पसंदी जीत या हार के बाद ही गले लगाने देगी। मुझे खुशी है तुम हमारे पास हो। वो आरास से ऐसे जुमलों की, वो भी मोहब्बत और खलूस से भरे, उम्मीद नहीं रखता था। और मुझे लगता है तुमने मुझे माफ़ कर दिया है आरास। ज़रग़ाम ने उसका चेहरा हाथों में भरा तो आरास ने मगरूरियत की हद करते आंखें ऊपर को घुमाई। बाद में बताऊंगा, अभी मूड नहीं। ज़रग़ाम ने दांत से पीस कर उसकी गर्दन बाजू में दबोच ली।
ढीठ हड्डी कमीना। आरास ने उसकी बाजू का ध्यान रखते ही वार भी बर वक्त रोका और उसकी बाजू के शिकंजे से मुस्कुराता हुआ फिसल कर निकला। और तुम प्रो ढीठ हड्डी प्रो कमीने। आरास ने भी जवाबी वार डट कर किया और दोनों ही इस पर जिस तरह बेदम होकर दोहरे होते हंसे। दोनों की जमीर ने छित्तर मारकर मलामत की कि सप्तरी में आस पास के हालात चल रहे और उनका हाल कैसा जोकरों सा है। बहरहाल दोनों बाबा साईं और मीरान के आने तक आरेज के पास ही रुके और फिर वो शहबाज मिशन पर निकले थे। याकूब तुरज़ई का तो दिल बहुत सख्त गमगीन हुआ था जब उन्होंने तमाम हकाइक जाने। मीरान से वो रास्ते में सब तफसील ले चुके थे। इन लोगों की जरूरत कितनी बढ़ चुकी है, खुदा की पनाह। मैं तो सोच भी नहीं सकता था वो अजमल अपनी औलाद को इतना टॉक्सिक बना चुका है। बाबा की जान बहुत बहादुर है मेरा शहजादा, मेरी सबसे प्यारी जान हो तुम। दर्द है क्या? बाबा साईं के आने के सबब आरेज भी दोबारा मुस्कुरा रहा था, वरना रोम रोम में वो लड़की दर्द भर गई थी। बस थोड़ा सा, मुझे मजीद हॉस्पिटल नहीं रुकना बाबा साईं, यहाँ मेरा दम घुट जाएगा। अब दोनों मुझे हवेली ले जाएं। अम्मा जान भी कह रही होंगी पता नहीं कहाँ चला गया आरेज। इस वक्त मुझे उनके साथ होना चाहिए, वो अकेली रही तो डिप्रेशन में ना चली जाएं। मीरान और याकूब तुरज़ई ने एक दूसरे की सिम जख्मी नज़रों का तबादला किया। मैं डॉक्टर से बात कर चुका हूँ, आज तुम्हें रुकना है, कुछ टेस्ट हैं। इंशाल्लाह कल हम हवेली चले जाएंगे। मैं उन्हें ले आऊँगा तुम्हारे पास। उन्हें बताया था तुम्हें फ्लू है, परेशान मत हो बच्चे। वो ये जानने के बावजूद बाबा साईं का हाथ दबा गया। रात तक टेस्ट कर लें ये लोग, मुझसे नहीं रहा जा रहा यहाँ। आरेज के इसरार पर मीरान ने उसके दाएं तरफ बैठे उसका हाथ पकड़ कर चूमा। बच्चे जिद नहीं करो, तुम किस खतरे से निकले हो तुम्हें अंदाजा नहीं है। मैं मिशकात और मनाफ को ले आऊंगा अगर तुम बोर हो रहे हो, बल्कि आरास, लुशे, जिरगाम, मेहरमा सबको कहूंगा रात आ जाए यहाँ, तब तो रह लोगे। वो अब भी बेकरारी से अपना हाथ छुड़वा गया। उसकी जिंदगी से उगताई कैफियत मीरान और याकूब तुरज़ई के लिए तशवीशनाक थी। नहीं, मुझे बस अपने रूम में सुकून से सोना है, कोई नहीं चाहिए मुझे अपने पास। मीरान को उसके रवैये से परेशानी हुई, जबकि याकूब तुरज़ई यही समझ रहे थे शायद वो इस हादसे से खौफजदा हो गया है। क्या हो गया मेरे शेर को? ठीक है, आज कोई नहीं रुकेगा, मैं रहूंगा अपने बेटे के पास। बाबा की जाने से उदास तो ना हो, पहले ही तुम्हारा दर्द नहीं देखा जा रहा। वो बाबा के ऐसे लाड और शफकत पर और कमजोर पड़ रहा था। मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो, बस सुबह से लेटे लेटे थक गया। और डॉक्टर नर्सों की शक्लें, ये बदबूदार दवायात, समझे ना आप दोनों यार। इस बार वो दोनों ही जरा सुख भरा सांस लिए मुस्कुराए कि परेशानी की वाकई बात नहीं, ये चिड़ तो फितरी है। समझ गए, बस मैं रुक रहा हूँ मीरान, तुम चले जाओ हवेली। बाबा अपने बच्चे की उकताहट अच्छे से मिटाएंगे आज। तुम जाओ शाबाश हवेली के मामलात देखो, और जैसे ही शहबाज की कोई खबर मिले इन्फॉर्म करो मुझे। 2-3 झांपड़ तो मैं भी मारूंगा जलील को। मेरे बेटे को गोली मारने की जुर्रत की इस नाहनजार ने। कीड़े पड़े उसे। अजमल इसका बदला सहेगा इंशाल्लाह, उसे भी औलाद की तकलीफ सहनी होगी। अब बाबा बेटे के बीच वैसे भी मीरान ना रुकता, उसे इत्मीनान जो मिल गया था। ठीक है बाबा साईं, और तुम बताओ मेरा बच्चा कुछ खाएगा तो मैं भिजवाता हूँ। मिशकात के साथ खुद भी किचन में खड़ा होकर बनाऊंगा तुम्हारे लिए। लाला की नकचड़ी जान। वैसे प्यार पर और रूहानसा हो रहा था। उसके पास सब कितने प्यार करने वाले थे। तीनों भाइयों का साथ, बाबा की मौजूदगी, फिर भी वो खुश नहीं था। उसके बावजूद उसका सीना तंग पड़ा हुआ था। मुझे पुलाव खाना है, वो भी चिली फ्लेक्स वाला। आरेज ने मासूम बच्चों की तरह फरमाइश की। सदके जाऊं, मैं डॉक्टर से पूछता हूँ, अगर परमिशन मिली तो मैं भेजता हूँ तुम्हारे लिए बच्चे। ख्याल रखो और बाबा साईं को ज्यादा नखरे मत दिखाना, मुंह भी कम बनाना। याकूब तो दोनों को आंखों में बसाए मुस्कुरा रहे थे। क्यों क्यों, मैं तो उठवाऊंगा नखरे। मुझे मेरे बाबा साईं ऐसे पूरे अरसे बाद मिले हैं। आरेज के जवाबी लाड पर मीरान ने मुस्कुराकर उसका सर चूमते ही बिगड़ी बला बाबा के सुपुर्द की। बाबा साईं कुर्बान जाएं तुम पर। मीरान ने उनके प्यार को मोहब्बत से देखा और इजाजत ली, जबकि याकूब तुरज़ई ने उसका पट्टी की जद में जकड़ा हाथ पकड़ा और सामने से उठकर बिस्तर पर बैठे ही जब वो उठकर बाबा के गले लगा। ठीक हो जाओगे, तुम घबराने की जरूरत नहीं। मेरा बहादुर बेटा, बाबा का फख्र हो तुम चारों। वो उन्हें क्या बताता, उसका दिल तो अब ताउम्र यूं ही घबराने वाला है। उससे सजल जुक हो गई है। जबकि दूसरी तरफ मेहरमा और आलूश जब तक बुरहान हान की तरफ पहुंची शाम के 6 बज चुके थे। वो दोनों जब आई तो दरवाजा बुरहान हान ने ही खोला। आलूश को देखते ही वो बाजू बाह कर गए तो वो उनके सीने लगी, जिस सबब वो अपना जब्त सा खो गए। ये तो मेहरमा ने हौसला दिया कि वो कुछ संभले। उन्होंने मेहरमा का भी सर शफकत से चूमा। वो लोग घर के सहन तक आकर रुके। सजल कहाँ है मामू जान?
آلوش کے سوال پر وہ خوفزدہ نگاہوں سے پہلے آلوش پھر مہرما کو دیکھنے لگے۔ کیا مطلب کہا ہے؟ وہ مہرما اور زرگام کے ساتھ ہسپتال گئی تھی نا ریس کو دیکھنے؟ برہان خان کی آنکھوں میں لمحہ لگاتے ڈر امڈا اور یہی ڈر مہرما اور آلوش کی آنکھوں کے دریچوں میں بھی آن ٹکا۔ مگر وہ تو وہاں سے کافی دیر پہلے واپس آ گئی ہے برہان انکل۔ مہرما نے بے ارادہ جملہ کہا جس پر آلوش اور برہان خان کی پریشانی سے ایک سی حالت ہوئی۔ خود مہرما کی بھی مختلف نہ تھی۔ یا میرے اللہ، کہاں چلی گئی وہ؟ اسے کچھ ہو نہ گیا؟ کھو تو نہیں گیا نا میری بیٹی؟ برہان خان وہیں اپنا دل تھام کر صحن کے وسط میں لگے تخت پر لڑکے تو آلوش نے انہیں سنبھالنے کی غرض سے پاس ہی بیٹھے ان کی بازو تھامی، جبکہ مہرما نے وہیں کھڑے کھڑے موبائل کی اسکرین آن کرتے زرگام کا نمبر ڈائل کیا۔ پریشان مت ہو مامو، ہو سکتا ہے راستے میں ہو، آ رہی ہو۔ آلوش نے ان کو دلاسا دیا، پر وہ بہت زیادہ اذیت کا شکار نظر آئے، جبکہ زرگام اور آراس اس وقت ساتھ ہی اپنے لوگوں کے بتائے کچھ خفیہ اڈوں کی طرف چھان بین کے ارادے سے نکلے تھے جہاں شہباز کے چھپے ہونے کے امکان تھے۔ اس سے پہلے زرگام فون کال ریسیو کرتا گھر کا دروازہ کھلا اور وہ سر پھاڑ جار حلیے میں گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان، اس کی ابتر حالت زدہ آنکھیں دیکھ کر وہ تینوں ہی دہل گئے تھے۔ ہاں مہر، کیا ہوا؟ اس طرف سے زرگام بھی کال اٹھا کر بولا۔ ہم سمجھے سجل پھر کھو گئی، لیکن وہ ابھی واپس آئی ہے یہاں اپنے گھر۔ میں تمہیں ڈیٹیل دیتی ہوں، وہ اچھے حال میں نہیں لگ رہی زرگام۔ مہرما نے سرسری طور پر باخبر کیا تو زرگام اس پر بس افسوس زدہ ہی ہوا۔ بہرحال مہرما نے رابطہ توڑا۔ تم کہاں رہ گئی تھی سجل بچے، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ آلوش اور برہان خان دروازے سے اندر آتے سجل تک پہنچے ہی جب برہان خان نے اس کے ایک کے بجائے دونوں زخمی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھرے، وہ روتی ہوئی بابا اور پھر آلوش کو دیکھنے لگی۔ مہرما بھی ان کے پاس چلی آئی۔ وہ تینوں سجل کی حالت سے خوف زدہ نظر آئے۔ آلوش، سب ختم ہو گیا؟ وہ بابا سے ہاتھ چھڑواتی بلک بلک کر روتی آلوش کے گلے لگی تو آلوش نے اسے بروقت بازوؤں میں حصار کر خود سے لپٹائے سنبھالا۔ مہرما اور برہان خان کا دل جیسے زخمی سا ہوا۔ نہیں سجل، کچھ ختم نہیں ہوا، یہ بس تمہارا وقتی وہم ہے، ایسے خود کے ساتھ مت کرو۔ ادھر وہ رو رہے تھے اور یہاں تم اس حال پر ہو، کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ تم ان سے آخری ملاقات کرنے گئی تھی، وہ کتنا ٹوٹ گئے اس پر تمہیں اندازہ ہے؟ وہ آلوش سے دور ہوتی اپنے آنسو رگڑ گئی۔ اور میرے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کیا ہے؟ بے معنی ہے لوشے، اس نے مجھ سے بہت برے طریقے سے بات کی۔ بابا، وہ اپنے زخم کی پرواہ کیے بنا لڑ رہا تھا مجھ سے، اس کے زخم سے خون نکلنے لگ گیا، پھر کہنے لگا پٹی اکھاڑ دے گا، میں چلی جاؤں۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ میں اس سے آخری ملاقات کرنے کس کربناک ہوتے دل سے گئی تھی۔ میں اس محبت کے سبب نہ اچھی بیٹی رہی نہ اچھی لڑکی، پھر بھی میں گئی۔ میرے اندر برداشت نہیں کہ میں اسے ایک بار مزید لہو ہوتے دیکھوں، لیکن اس نے مجھے لہو ہو کر دکھایا۔ میں ختم کر آئی سب۔ اب میں کسی آریز کو نہیں جانتی نہ پہچانتی ہوں۔ مجھے پلیز ایسی ترس بھری نظروں سے مت دیکھیں آپ تینوں۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، ابھی مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ وہ ان تینوں کو بہت ذہنی دباؤ میں لگی، اس کے ہاتھ، اس کی روح، اس کا پورا وجود چھلنی دکھائی دے رہا تھا۔ جن بیٹیوں کے بابا دل کے مریض ہوں، اکیلے ہوں، پچھتاووں کی زد میں بھی ہوں، ان بیٹیوں کو نہ محبت کا حق ہے نہ اجڑنے کا۔ لیکن میں نے یہ دونوں تکلیفیں دے دی آپ کو بابا، مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں خود کو سنبھال لوں گی، میں آپ کی اچھی سجل بنوں گی دوبارہ، آپ مجھ سے نا امید مت ہوئیے گا۔ وہ ان تینوں کو آزردہ غمگین کرتی وہاں سے گئی تو آلوش نے ماموں کا ہاتھ تھامے سنبھالا جو رو پڑے تھے۔ آپ ایسے مت کریں ماموں، یہ مسئلہ جلد حل ہوگا، میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے، روئیں نہیں پلیز۔ وہ آلوش کی طرف دھندلائی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ بالکل، ان دونوں کو لگ رہا ہے سب ختم ہو گیا، پر سب ختم نہیں ہوگا برہان انکل۔ اس وقت اسے آپ کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس گلٹ سے مقابلہ کر سکے۔ اس کے ساتھ رہیں، مضبوط رہیں پلیز۔ آپ یوں روئیں گے تو وہ یہی سمجھے گی کہ وہ آپ کی بھی تکلیف ہے۔ اس نے بے وقوفی کی ہے، پر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ نہیں کیا کہ وہ آپ کی اچھی بیٹی نہ رہی ہو یا اچھی لڑکی نہ رہی ہو، اسے یہ بات آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ مہرما کی بات پر برہان خان نے کرب سے سانس لیتے باری باری مہرما اور آلوش کو دیکھا۔ میں اس کے ساتھ ہی ہوں میری بیٹیوں۔ برہان خان کے اس جملے نے ان دونوں کو ہمت دی۔ میں ایک بار اسے دیکھ لوں، پھر ہم چلتے ہیں میرا پیا۔ لوشے نے باری باری دونوں کی طرف دیکھتے اجازت لی۔ ٹھیک ہے، جاؤ اور دیکھو، بات کر پائے تو کرنا، ورنہ مجبور مت کرنا اسے، آلریڈی کافی ڈپریس ہے۔ آلوش نے فرما برداری سے سر ہلایا اور وہ فوری کمرے کی طرف لپکی۔
महरमा ने भी बुरहान अंकल का हाथ थामे उन्हें बिठाया और खुद भी पास बैठी, जो शदीद गमज़दा थे। वो कमरे में बिस्तर के किनारे बैठी आंसू बहा रही थी जब आलोश पर्दा पीछे सरकाती अंदर दाखिल हुई। सजल ने उसे आता देखे फौरन अपने आंसू रगड़े और उठी। मुझे किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं लुशे, अभी तुम जाओ प्लीज। आलोश ने आकर इसे अपने गले लगाया तो सजल की आंखें फिर से बरसने लगी। हमदर्दी तो नहीं है ये, तुम बहन हो मेरी, मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में तुम पर इतने दर्द के पहाड़ टूट गए। पहले तो माफ़ी दे दो मुझे, मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, और इसके बाद ये यकीन रखो कि तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सजल उससे अलग हुई, अपनी आंखें रगड़ी। तुम मानो ना मानो, मेरे महरोज भाई और अम्मी के साथ जो हो रहा है ये बाबा के गुनाहों की वो सजा है जो हम बहन भाइयों और हमारी माँ को मुफ्त में झेलनी पड़ रही है। मेरे लाला ऐसे नहीं थे, तुम भी जानती हो लुशे, तुम जानती हो। मैं घर गई थी, वो मेरी माँ घर के दरवाजे पर बैठी हर आते जाते को हसरत से देख रही थी, जैसे किसी से बात करने को तरस रही हो। मैं मुंह पर दुपट्टा डालकर वहां से निकल आई, मुझे पहचाना तक नहीं। और फिर मैंने वहीं कुछ देर रुक कर देखा, महरोज लाला आए और मेरी और अपनी माँ को नज़रअंदाज करते ठोकर मारते घर में चले गए। हमारी माँ उनको आवाज़ें लगाती लगाती रो पड़ी कि मुझसे बोलता ही नहीं ये। आते जाते लोग रुक रुक कर कानों को हाथ लगा रहे थे कि इबरतनाक अंजाम शुरू हो गया है शमीम का। आलोश ने उसका चेहरा हाथों में भरा, उसके तवातर से बहते आंसू पूंछे। काश मैं तुम्हारी इस तकलीफ को दूर कर पाती, लेकिन इन माँ बेटे के मजालिम तुम्हारे सामने है सजल। मामू गुनाहगार है, पर कुछ गुनाह शमीम और महरोज खान के भी हैं। ज़रूरी नहीं हर तकलीफ किसी नाकर्दा जुर्म की वजह हो। इंसान अपने अपने बुरे अमालों की भी सज़ा काटता है। महरोज खान और शमीम साहिबा ने मेरे साथ जो किया वो एक तरफ, तुम्हारे और मामू के साथ भी बदतरीन ही किया था। तुम सारा कसूर मामू को कैसे दे सकती हो? वो बुज़दिल थे, मेरे लिए स्टेप नहीं ले सके, अपनी बहन के बच्चों की हिफाजत ना कर सके जैसे करनी चाहिए थी, लेकिन मैं और ज़रगाम लाला उन्हें माफ़ कर चुके हैं, और अल्लाह भी तब माफ़ कर देता है जब बंदे माफ़ करते हैं। फिर भला मामू को इसकी सज़ा क्यों मिलेगी? तुम खुद सोचो, तुम जो ये तकलीफ़ सह रही हो ये तो मोहब्बत की रस्म है। बिना दर्द पाए मोहब्बत मिल जाए तो उसकी कदर व मंजिलत का हमें एहसास तक ना हो पाए कभी। सजल ने भीगती सुर्ख आंखों से लोशे के साथ लग जाते जैसे हिचकी बरी तो वो उसे दोबारा गले लगा गई। दुआ है महरोज खान और शमीम ममानी को अपनी गलतियों का जल्द एहसास हो जाए और वो तौबा का दर बंद होने से पहले माफ़ी मांग ले। परेशान मत हो, मामू को तुम्हारी ये सोचें मार देंगी। तुम इनसे हफा नहीं हो सकती सजल, वो तुम्हारे इस वक्त सबसे बड़े मुहाफिज हैं। वो बाबा हैं तुम्हारे, उन्होंने तुम्हारे साथ अपना ही घर छोड़ दिया था। तुमने कभी पूछा उनसे मनपसंद औरत से नफरत करना कैसा दर्दनाक एहसास है? अपने ही बेटे को देखकर हकारत से मुंह मोड़ लेने में कितना लहू लगता है। एक बुज़दिल इंसान कभी दिल का मरीज नहीं हुआ करता, वो हर तकलीफ से भी भाग जाने का आदी होता है। अब जो ये बुरहान खान है ये बुज़दिल नहीं है, ये अपनी बेटी का बाप है, और इस बेटी के अलावा उन्हें किसी की नहीं पड़ी। सजल ने हिचकियों की जद में अपना चेहरा दूर किया तो आलूश ने फिर से उसके आंसू पूंजे। लूशे, मैं अपने लाला और माँ का बुरा अंजाम नहीं सह सकती, मेरा दिल फट रहा है। मैं समझ रही थी आरेज को छोड़ना सबसे बड़ी तकलीफ है, पर अपने भाई और माँ की ये हालत देखना संगीन तरीके वाला दर्दनाक है। मैं बाबा को मुजरिम समझती हूँ, अब भी ये सोचकर खुद से घिन आ रही है। मैं बहुत टूट गई हूँ लुशे, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकती। मैं तो बहुत खुशबाश लापरवाह सी लड़की थी, अब देखो मुझे। वो उसकी बात फौरी काट गई। अब भी तुम वैसी हो जाओगी, फजूल में ओवर थिंकिंग मत करो। आरेज और तुम्हारा रिश्ता हम सब खुद जोड़ेंगे, और मैं तो ये भी दुआ करती हूँ कि तुम अपने लाला और माँ से भी महरूम ना रहो। इन रिश्तों की कमी का दर्द मैं जानती हूँ, कैसे चाह सकती हूँ कि तुम इस सब से गुजरो। सजल ने उसके दोनों हाथ थामे। तो तुम इन दोनों को माफ कर दो लुशे। आलूश ने कर्ब से सजल को देखा। बिना उनके शर्मिंदा हुए माफ़ी मांगे बिना तो नहीं करने वाली सजल, माजरत हुआ हूँ। मुझे इनसे ज़रा भी लगाव या मोहब्बत नहीं, शदीद गुस्सा और नफरत भरी है दिल में, हमदर्दी तक नहीं है। सजल ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। मैं जानती हूँ तुमसे फजूल बात की, मैं खुद भी कभी नहीं चाहती तुम इन जालिमों को माफ़ करो। बस एक की बेहिसी और दूसरी की बेबसी देखकर कुछ इमोशनल हो गई थी। तुमसे दिल का बोझ बांट कर अब बेहतर हूँ। सजल के इस जवाब पर आलोश को मसरत हुई। गुड, अब मामू को परेशान मत करना। आरेज और तुम जल्द एक हो जाओगे। उनके भाई उनका दर्द नहीं सह सकते, और तुम्हारी ये बहन तुम्हारा दिल हाल ही नहीं देख सकेगी।
वो भीगी आंखों से मुस्कुराई तो आलूश को भी जैसे कुछ हौसला मिला। आलूश, मुझे उसकी सलामती चाहिए बस, वो उससे मुझसे दूर मिले या मेरे करीब। अभी तो दूर रहने में ही लग रही है, कम से कम जब तक शहबाज को उसके किए की सजा ना मिल जाए। मैं जानती हूँ मेरी बेवकूफ़ी माफ़ी लायक नहीं, पर उससे भी मेरा ख्याल करना चाहिए था। बहुत बुरे तरीके से बात की उसने। एक दिल किया थप्पड़ दे मारूं, लेकिन मेरे मारे थप्पड़ों ने हमें किस जगह पहुंचा दिया, ये सोच कर रुक गई। काश वो मेरी जिंदगी में ना आया होता तो ये गोली तो उसके सीने पर ना लगती। तुम खुद सोचो, मैं अगर उसकी कभी हो भी गई तो ये गिल्ट मुझे उसके करीब नहीं होने देगा। मुझे यही लगेगा मैं उसके लिए मोहलिक हूँ। आलोश ने उसकी ये सारी बातें सुनी पर मुस्कुराई आखिरी जुमलों पर थी। बेफिक्र रहो, वो तुम्हें खुद करीब कर लेगा। सजल भी उसकी वारफ्तगी भरी स्माइल पर दर्द से निकल कर मुस्कुराई। जैसे आराज भाई ने तुम्हें करीब किया। आलूश के रुखसार से देख के छेड़ती शरारती सजल की हल्की सी झलक ही सही, पर वो खुश थी कि देखनी नसीब हुई। इन हस्बैंड को सारे हक हासिल होते हैं, इसलिए तुम बात की फिक्र मत करो। अहम तुम दोनों का एक होना है। जरा ये मामलात हल हों तो फिर हम तुरज़े हवेली वाले मिलकर तुम दोनों के खिलाफ सॉलिड प्लानिंग करते हैं, सॉलिड और खुफिया। आलोश ने इसे स्माइल करवाया जो कुछ देर पहले सांस सांस मर रही थी। ठीक है, तुमने अपनी गैर मौजूदगी की सारी तलाफी कर दी आलोश। मुझे खुशी है मेरे पास तुम जैसी बहन और दोस्त है। मैं ब्लेस्ड हूँ। सजल का ये इतराफ एक तरफ वो बेहतर लग रही थी, आलोश के लिए खुशी का बायस था। मुझे खुशी है कि तुम्हारा दिल कुछ हल्का हुआ। अब तो मेरी कॉल का इंतजार करना, ये कॉल कि सजल हान हम तुम्हारा रिश्ता लेकर आ रहे हैं। अब ऐसी धुआंधार मोहब्बत का रास्ता हम तुरज़े वालों को ही खोलना होगा। तुम दोनों तो निकम्मे सब खत्म कर चुके हो। सजल का चेहरा हबीब सा गुलाबी हुआ। मुझे वो बहुत प्यारा है, ये सच है, मैं उसका होना चाहती हूँ, पर आज इसने मेरा बहुत दिल दुखाया है लुशे। वो आजरदा हुई। खुद कौन सा खुश हैं? आलोश ने फौरी दिलासा दिया। बस यही सोचकर दिल का दुखना शिद्दत खो रहा है। उसे एहसास तो है कि उसने मुझे तकलीफ दी। यही एहसास ही मोहब्बत है शायद। आलूश ने उसके हाथों को थामा। बिल्कुल यही एहसास मोहब्बत है। अपना ख्याल रखना, मैं और मेहरमा अपिया जा रहे हैं। सजल ने उसे जब बहुत पुरसुकून होकर बाहर आते सी ऑफ किया तो मेहरमा समेत बुरहान हान की तड़पते दिल को भी जिससे सुकून मिला था। मेहरमा और आलूश को रवाना किए खुद बुरहान ने अपनी बेटी को अपने सीने लगाया था, जबकि मेहरमा और आलूश वापसी के लिए रवाना थी। तुरज़े हवेली ड्रॉप करूँ तुम्हें या भाई के रेस्ट हाउस? आलूश ने ड्राइव करती मेहरमा को देखे स्माइल की। हवेली जाकर सिर्फ साहिबा से ताज़ियत करूँगी। आपस की बात है, वो मुझे कभी पसंद नहीं आ सकी, लेकिन उनके साथ जो हुआ उसका अफसोस है। आप भी आ जाएं, मिलकर ताज़ियत कर लेते हैं। मेहरमा को उसकी बात सुने मसरत हुई। मुझे भी ताज़ियत करनी थी, तुम्हारे साथ जाना कंफर्टेबल होगा। अकेली गई नहीं कि बाबा की वजह से मुझ पर न बरसने लगे कि उनके शोहर के कातिल की बेटी क्यों आई ताज़ियत को। फिर मैं रेस्ट हाउस जाऊंगी, तुम्हारा भाई कह रहा था मेरे लिए कोई सरप्राइज है, इसके वापस आने से पहले जाकर छापा मारूंगी। आलोश ने इश्तियाक से आंखें प्यार से भरी। सच्ची, ये सरप्राइज बेहद सुकून आवर और खूबसूरत हो, मेरी दुआ है। आप भी बहुत दुख से गुजरी हैं मेहर अपिया, आपके भाई कज़न और अम्मी सब चले गए। ताज़ियत कबूल करें। मुझे भी लगता है आप इस दर्द से भरे वक्त थोड़े सुकून आराम की मुस्तहिक हैं। मेरे भाई ने यकीनन बेहतरीन सोचा होगा। मेरी दुआ है अल्लाह आप दोनों को बेशुमार राहतों से और साथ के सुख से नवाजे। आलूश का हाथ वो ड्राइविंग करने के बीच ही पकड़ कर चूम गई। मेहर का ये करना आलूश को शफकत और खलूस का एहसास दिलाता था। बहुत शुक्रिया मेरी जान, तुम इससे जब से मिली हो वो भी मज़ीद स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है मुझे। हालांकि उसके बाबा को गोली लगी थी, इस कातिल को जरगाम ने खून देकर बचाया। इस फेज के बीच वो बिखर जाता, लेकिन वो जुड़ा रहा, यकजा रहा। मेरी भी दुआ है वो अपनी बहन से कभी ना बिछड़े। आमीन। हम सब साथ खुश रहें, अल्लाह हम सब की आजमाइशें ख़त्म कर दे। आलोश की आंखें सी भर आईं। मेरे भाई मेरी जान है वो। अब बहुत अच्छा वक्त गुजारे साथ आज। मैं एक्स्ट्रा वाली दुआ करूंगी। मेहरमा उसकी मासूम शिद्दत पर मुस्कुराई। सच पूछो तो मुझे खुद से ज़्यादा उसको सुकून पहुंचाने की तमन्ना है। अगर वो मेरे साथ सुकून में आ जाता है तो मैं खुशी खुशी अपना हर दुख एक तरफ करके उसके लिए पूरी मुयस्सर रहूंगी। तुम बताओ, तुमने और आरास ने एंजॉय किया ये छोटू मुन्नू सा ट्रिप? आरास का सोचते ही वो मुस्कुराई तो मेहरमा ने ड्राइविंग के बीच सरसरी निगाहों से भी उसकी बेकाबू खुशी भांप ली। बहुत एंजॉय किया, सब बहुत खूबसूरत था। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था जितना बढ़कर पाया।
महरमा को इसे खुश देखकर दिली राहत मिली। माशाल्लाह, नजर ना लगे तुम दोनों की इस खुशी और साथ को। आमीन। महरमा की दुआ पर आलोश ने दिल से आमीन कहा। आमीन, लेकिन मैं आपके और भाई के लिए ज्यादा पुरजोर हो रही हूँ। मेरे लिए जैसे वो वैसी आप है महर अपिया। महर उसके प्यार पर शर्मिंदा सी हुई। वो भी महर कहता है तो बहुत प्यारा लगता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने नोट किया तुम दोनों की वाइब काफी मिलती है। मैं तुम्हारे साथ भी बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। कभी वो दूर जाया करे तो तुम मेरे पास आ जाया करो। हम मिलकर उसकी ढेर सी बातें कर लिया करेंगे। इस तरह वो गधा भी हमें कम याद आएगा। आलोश इस ऑफर पर हंसी तो उसकी हंसी भी जिरगाम जैसी नायाब, मुनफरिद और कभी कभी मंजरे आम पर आने वाली बेशकीमती सी थी। मैं तो दुआ करती हूँ वो कभी दूर जाए ही नहीं हमसे। पर अगर गए तो ये वाली ऑफर कबूल करती हूँ, पर मेरे भाई गधे तो नहीं अपिया यार। महर इस बार हंसी। उफ, भाई की बहन अंगड़ाई लेती जाकर एक्स्ट्रा प्यारी लगी मुझे। यस यस, गधा नहीं है वो, शेर है मेरा। इस पर तो दोनों ही मुस्कुरा दी, जैसे उन्हें इस वक्त कोई सी परेशानी याद ही ना रही हो। सरगम और आरास अब हंसी मजाक से हटकर संजीदा हो चुके थे। महरमा और आलोश को पीछे छोड़कर वो दोनों शहर के इन हिस्सों की तरफ निकल पड़े जहां रोशनी कम और राज ज्यादा थे। पहला अड्डा पुराना बस अड्डा था। टूटे फूटे शेड, जंग आलूद बसें और वीरान प्लेटफार्म। उन्होंने हर कोने में झांका, हर ड्राइवर से पूछा, मगर जवाब वही था कि नहीं देखा, नहीं जानते। दूसरा मकाम शहर के किनारे पर एक पुरानी चाय की दुकान थी जहां रात गए मशकूक लोग आते थे। वहां भी सिर्फ हाली नजरें और इनकार मिला। तीसरा अड्डा एक बंद गोदाम था जिसके दरवाजे पर जंजीर लटक रही थी। अंदर गए तो गर्द खामोशी और पुरानी फाइलों के सिवा कुछ ना था। हर जगह से मायूसी ही हाथ आई। सरगाम ने दीवार से टेक लगाई, सांस भरी था। ये शहर इतना बड़ा नहीं जितना लगता है, फिर भी शहबाज जैसे गायब हो गया है। आरास की नजरें दूर अंधेरे में गुम थी। गायब नहीं हुआ, छुपाया गया है। सरगाम ने इसकी तरफ देखा। फिर वो लोग असल जगह रवाना हुए। इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होते ही दोनों ने वक्त जाया नहीं किया था। सरगाम के पुराने जराए और आरास के खुफिया रवाबत एक साथ मुतहर्रक हो चुके थे। चंद ही घंटों में खबर मिली कि शहबाज को आखिरी बार शहर के मजाफात में मौजूद चंद खुफिया अड्डों के पास आसपास देखा गया था जहां जराइम पेशा गिरोह पना लिया करते थे। पहला अड्डा इस्लामाबाद के जंती इलाके में एक बज़ाहिर वीरान वर्कशॉप थी। बाहर जंगालूद शटर और टूटी दीवारें देखकर कोई अंदाजा भी ना लगा सकता था कि अंदर गैर कानूनी असलहा और मंशियात की खरीदो फरोख्त होती है। आरास और जरगाम ने वहां पहुंचकर पूरे अड्डे की छानबीन की, मगर उन्हें सिर्फ जल्दी में हाली की गई जगह, बिखरा हुआ सामान और खून के चंद सूखे धब्बे मिले। वो यहाँ था। आरास ने फर्श पर पड़े ताज़ा जूतों के निशानात देखते हुए धीमे लहजे में अंदाजा लगाया, मगर हमसे चंद घंटे पहले निकल चुका है। दोनों को यहाँ के बिखराव से अंदाजा हो चुका था, जबकि अजमल ये खेल जुनैद की रिहाई तक यूं ही खेलने वाला था। दूसरी इतला बनी गाला के अकब में जंगल से मुल्हिक एक फार्म हाउस की थी। वहां पहुंचने पर दरवाजे खुले थे, गाड़ियां गायब थीं और पूरा खाता गैर मामूली खामोशी में डूबा हुआ था। दोनों ने हर कमरा, तहखाना और जेर जमीन रास्ता घंगाला, मगर वहां भी सिर्फ जली सिगरेटें, हाली कारतूस और जल्दी में छोड़े गए खाने के बर्तन मिले। सरगाम ने मायूसी से दीवार पर मुक्का मारा। हर बार हम एक कदम पीछे रह जाते हैं। आरास ने गर्दो गुबार में पड़े इन टायरों के ताज़ा निशानात पर नजरें जमाए रखी। नहीं, वो भाग नहीं रहा। सरगाम ने सवालिया नजरों से इसे देखा। फिर सरगाम अलर्ट हुआ। वो हर बार हमारे पहुंचने से चंद मिनट पहले निकाला जा रहा है। ये जुमला सुनते ही दोनों की नजरें एक दूसरे से मशकूक अंदाज में मिली। क्या नहीं? सरगाम का जैसे दिमाग सुन हुआ। हमारे हर कदम की खबर शायद अजमल नूर खानाल को पहले से है और वो अपने बेटे को चारे सा डाल रहा है, फिर बर वक्त इस जगह से निकाल लेता है। उसका ये खेल बिला वजह नहीं। जरगाम, तुम्हें कुछ अंदाजा है? फिजाई एकदम बोझल हो गई। इसका मतलब साफ था। शहबाज सिर्फ छुप नहीं रहा था, उसके बाप का कोई बड़ा मकसद इसे दूर ले जा रहा था और इनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए भी था। सरगाम की आंखों में जैसे लम्हा लगाते लहू उतरा था। टनटना। जी जनाब, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी, मज़ा आया होगा। तो क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में? कुछ धमाकेदार है जो आप लोगों ने बिल्कुल उम्मीद नहीं किया होगा। क्या नेक्स्ट एपिसोड में शहबाज मिल जाएगा उन्हें? ये तो देखना है आपको। कल कल के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और धड़ धड़ अपने प्यारे से तबसरे पोस्ट करने होंगे।
جتنے زیادہ تبصرے اتنی لمبی قسط. تب تک کے لیے، کل تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا اور چینل لازمی سبسکرائب کریے گا. بائے بائے.